अभी वो I have that stamp of approval that we like the boys. अभी सिर्फ public को I hope you guys like the song. Hope you guys like this song, and hope you guys share the song if you like the song with everybody. And I'm sure all the platforms it's there. Obviously YouTube ne we've already posted the teaser is there. And we have a guest over here right now, a very beautiful guest. All of a sudden the stage has been lit up by a light that's come into the and I think you can take I really love you, sir, for one more reason. Half my job has been done by Ash, sir. I love you the most. So, please give it up for Yashada. Guys, come on again. Now, when we talk about you, ma'am, I really want to know how does it feel to be launched directly by the maestros, the pioneers of, giving out chart busters, and then having Ash sir, singing that entire composition, and then having Nishant sir, because Nishant sir को हमने टेलीविजन पे इतने सारे रोल निभाते हुए देखा, पुलिस वाले भी बन चुके हो सर, पुलिस वाले के बाद में जब रोमांटिक पे आना पड़ता है, तो वो जो डेप्थ है, वो एग्जैक्टली कैसा था वो मैं आपसे बाद में पूछना चाहूँगा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, what was your experience, working with him, firstly? So first of all, sorry I'm late. Sorry everybody. And second of all, the song was superb. Like the first thing which I got to know was the song. The song was superb. Everything, the lyrics, like the melody of the song, it was so nice. And then when you hear that Nishant is going to be with you, first of all I was nervous. But when I met him on set, he is the best human to share screen with. Like I've said this to him thousands of times. He is so warm, like he's so warm. I am the newcomer, I'm facing the camera for the first time. But he made me so comfortable on set. So I'm really grateful. Thank you so much. Thank you for everything. And what do you feel about, being the face for a song composed by the legends and sung by a legend? What exactly was the thought process? I really want to know. थोड़ा हाथ वो होता है ना, हम नॉर्थ में ऐसा बोलते हैं सर कि मतलब लड़कों को पता ही नहीं हाथ के साथ क्या करना है, लड़कों को पता ही नहीं फिजेट करने के लिए हम हाथ में कुछ रख लेंगे या तो ये चालू रहता है। नहीं ठीक है तो हम आते हैं कॉन्फ्रेंस पे सर। आपसे जो आखिरी सवाल मेरा यही था कि मतलब इतने बड़े माइस्ट्रोस आपके डेब्यू में काम करे, आपको कैसा लग रहा है? It's unreal, first of all. When I saw the trailer, the poster, the first thing my best friend told me, तुझे पता है ना कि ये तेरा पहला पोस्टर है? And that was the moment I realized, oh मेरा पहला पोस्टर आ गया है। So till the poster released, I did not believe it. It's happening with me. But when the poster got, the teaser got out, then it came to me that okay मेरा गाना आ गया है. And to see such great names associated with the song, I still remember my favorite Gana, Auntie G, get up and dance. And that is the singer of my first song. Can you believe that? Can you? I couldn't believe it. So it is surreal and still sinking in the entire experience. So I'm just grateful. तो यहाँ पे जो इतने सारे ख्वाबों के कारवां खुल चुके हैं, अब हम चाहते हैं कि आप हमारे दोस्त जो प्रेस हैं, जो मीडिया से, हम चाहते हैं कि आप अपना दिल खोल के आपके पास जो भी सवाल है, यू गाइस कैन स्टार्ट सो दैट पब्लिक के भी सारे सवालों के जवाब हम देंगे। आप हाथ उठा लीजिएगा। ओके, टिल द टाइम वी सेट अप द टेबल सर, अब यहाँ पे I would like you to set up the table. So till the time we set up the table, sir, I have something that I wanted to, perform in front of the legends that I have. And Ash sir, I think you might like it. How many people know beatbox? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Let the party begin.
जाने என்ன ரசிக்கல மைண்ட் The center. Oh my God. The leading lady be the center. Good. Yeah, of course. The frame will look balanced. Two men and one woman. I need to stand with my back straight. Yeah. Okay, so I think the questions are open. Okay, so firstly, congratulations. Teaser को काफी amazing response मिला था. गाने को Do you want the mic? No, this is the mic. These are the hey there. Do you want the mic? am I audible? Yeah, yeah. Yes, yes. Teaser को काफी कमाल था. More than 4 lakh views आए थे teaser को. And गाना काफी कमाल का लग रहा है. What would you like to say? How excited you were for this launch? And after the teaser got out, tell us something about the. I think our leading lady should lead with the answer. Start. How was the feeling? The feeling was surreal. अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअली हो गया है. ये एक्चुअली हो गया है. So अभी तक we are like lapping around my head entire experience. But the shooting was amazing. सब कुछ बहुत एकदम easily और smoothly हुआ था. कुछ shoots scenes काफी tough थे मेरे लिए because especially the raining scene, the starting of the song when I'm coming out of the car, तो वो वाला scene बहुत मुश्किल था. बारिश में इतनी ठंडी में shoot करना काफ़ी difficult था मेरे लिए. But yes, the entire experience was a learning experience. Plus I had such great people on set. Our director Mohit sir and Nishant, सबने बहुत मतलब मदद की, सिखाया. तो वो experience एक learning experience ज़्यादा था rather than like a big thing is coming out. ऐसा कुछ नहीं लगा. But अब वो लग रहा है. अब वो जब poster आ गया, teaser आ गया, अब समझ आ रहा है कुछ बड़ी चीज़ हो रही है. निशान आप क्या कहना चाहोगे गाने को लेकर? गाना जब मुझे पता चला कि जवान तूफान करके गाना है and Meet Bros want to hire me again, and for me it was like a very big deal because like I said कि मेरे लिए it was always a dream to work with Meet Brothers, and doing a second song with them, that too so quickly, you know, it makes me feel really nice and really happy about myself. Talking about the song, शिमला में हमने शूट किया. It was very very cold, लेकिन गाना इतना अच्छा था and Yashita did such a good job. And I have to mention that जो बारिश का ये बता रही है वो जितना आपको easy लग रहा है नहीं. इतनी ठंड थी वहाँ पे कि लिटरली लोग कांप रहे थे और उसमें ये भीगी हुई अपने शॉट्स बार बार 2-3 घंटे तक पूरा भीग के शॉट्स दे रही थी. एंड मुझे लिटरली तरस आ रहा था इसके ऊपर, बट देन आई वाज लाइक कोई बात नहीं, ऐसी सीखेगी, करने दो. सो आई गिव हर सम टफ लव देयर. And yeah, the song has come out really beautiful, and Ash has given such a beautiful voice to it. Thank you very much. Ash. Thank you. It's sounding so good. Congratulations for your the hit song, and one more song is coming up. Tell us something about how excited you were and what kind of response that you are looking forward from this song. तो पहले मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा. गाना तो इतना अच्छा गाया तुमने यार. तो जब the first time जब मैंने स्टूडियो में गया and I heard this song, मुझे मेरा एक्सपेक्टेशन था मीट ब्रदर्स, सो बिग पार्टी, बिग मतलब एक्सट्रावेगेंट, यू नो, डांस सॉन्ग. एंड Like a baby doll or a चिटिया गला ये. हाँ, एग्जैक्टली. तो देन आई हर्ड द सॉन्ग जवान तूफान एंड दे सेड लुक ऐश, हमारे पास एक नया लेबल है, वी हैव अ न्यू कंपोजर विद न्यू राइटर्स एंड कुछ नया चीज़ निकल रहा है फ्रॉम द मीट ब्रदर्स कैंप. सो मैं गाना सुना, आई वाज लाइक ओके दिस इज़ डिफरेंट, पर मैं कैसे गा सकता हूँ ये गाना, बिकॉज मेरे गाने लाइक लिस्ट में ये टाइप का गाना नहीं है. सो स्पेशली लाइक दिस, सो ये थोड़ा मेरे लिए इट्स वेरी इंटेंस रोमांटिक, young intense romantic song. So anyway, कोशिश किया, I recorded the song, then they said हाँ we like this but एक और बार गा दो, and I was like okay then. तो मैं एक और बार गा लिया in Kolkata this time, and somehow we are here today with this song. And अभी मैंने this is the first time I've seen the video, first time I've The met first time these we've two seen the lovely video young today, we are all actors. so happy to see it. And these guys did a great job on the video. I know it's so tough. Like Shimla must have been very. यहाँ पे बहुत ठंड है मेरे लिए. So Shimla must have been really It cold. was really Yeah. nippy, Like really so. cool. So yeah, really nice video, really nice vibes, and I hope सबको पसंद आया गाना. And yeah, check the song out on YouTube. Share the song and make reels on the song. विशाल, आपसे जानना चाहूँगा कि जो लास्ट सॉन्ग था वो भी आपका ही था और ये सॉन्ग भी आपका ही है. कई हद तक लगता है कि मीट ब्रदर्स के लक फैक्टर आप बन रहे हो. लक का तो पता नहीं, बट मेरे लिए लक फैक्टर बन गया दैट मीट ब्रदर्स हैव, यू नो,
done 2 songs with me, and like I said, मेरा पहला गाना जब आया था सर के साथ, भाइयों के साथ, for me it was a level up in my career. So this second song is another level up for me. So thank you so much. Thank you. Really दिल से thank you. Nishant, if you can tell us about the location where it was being shoot or filmed as. We were shooting in Shimla, and it was really cold, a very beautiful weather, but in a way, and the locations were really pretty, है ना? जो कॉटेज में हमने शूट किया है, जो आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में, दैट कॉटेज इज सो ब्यूटीफुल कि हम, मुझे लगता है कि इस गाने में भी हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि वो इतना ब्यूटीफुल है कॉटेज. रियल लाइफ में तो वो बहुत ही सुंदर था. If you talk about the scene, then the scenes were also a shooting only. So has it happened any time if you can relate yourself with the song theme when you are on a shoot and there you got a chemistry with your co-actor or co-actor? Yeah, but in this video, what you've seen is that Yashita has cracked a deal and she's got a chance to debut with Meet Brothers in their music video. And I am just somebody who's really happy for her. Like I have a lot of love for her, which I have not told her. मैंने बताया नहीं कि मैं प्यार करता हूँ इससे. But I'm just happy to see her grow in life. And in the end, she realizes कि okay, he loves me so much that he only wants the best for me, and that's why she loves me back. And Yashita, is your debut and how you got this song? Tell us something about it. Yeah, so basically the journey was कि audition दो and then somehow I got in contact कि मतलब Meet Brothers एक गाना ऐसे बनाना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं. So that was through sources and stuff. मुझे ऐसा पता चला, and that's when I started knocking their doors कि भाई देख लो, audition ले लो. So then yeah, couple of times I met them. I met Rajiv sir and I met many people in their office as well. And then through talking and through auditions, they analyzed me, they saw my talent, and that's how I reached out. Can you sing few lines from the song? Sure. जवां तूफान में तेरा मिलने आना, झुकी आँखों से तेरा शर्माना, यूं तो कुछ ना भुला पाया हूँ लेकिन. Something like that. Oh yeah, don't stop. You'll have to hear the rest of the. Don't stop. But my favorite part, वो ये गाने का favorite part मैंने, ये पगला दिल कहीं लगता नहीं जब से मिला है तू, कि मेरी बंजारगी आवारगी का एक ठिकाना तू, ओ जवा तूफान में तेरा भीग जाना. Really nice. वो पार्टी गाने गाने सारे. Okay, thank you. Thank you guys. Thank you. Thank you so much, guys, for being here. Thank you so much for all your questions. And Sure. Okay, so firstly, 2020. थोड़ा क्वाइट करवा देंगे एक बार. Silence, guys. Silence, please. हाँ, बेटर. थैंक यू. 2023 का मीट ब्रदर्स का पहला गाना है, काफ़ी अमेजिंग. टीजर को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, मोर देन 4 लाख व्यूज. एंड जिस तरह मैंने गाने को देखा, काफ़ी अमेजिंग गाना लग रहा है. व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द सॉन्ग? एंड 2023 की शुरुआत इतने अच्छे गाने से आप लोग कर रहे हो, किस तरह से उम्मीदें है 2023 को लेकर? ये कुछ गाने होते हैं जिसमें आप देखना चाहते हैं कि कितने व्यूज़ आए, लोगों को कैसा लगा. कुछ गाने होते हैं जिनके लिए हम व्यू देखते ही नहीं हैं, जिनके लिए हम कभी चेक भी नहीं करते कि व्यू आ भी रहे कि नहीं, क्योंकि हमें मालूम है ये गाना ज़िंदगी में अपनी जगह बनाएगा. बहुत सारे ऐसे रोमांटिक गाने थे, जैसे हमारा पहले गाना था एक बात कहूँ क्या इजाज़त है, तेरे इश्क की मुझको आदत है. वो एक सनी लियोनी की फिल्म थी वन नाइट स्टैंड, उसमें गया था और उस फिल्म को ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिली थी और वो फिल्म ज़्यादा आगे आ ही नहीं पाई. लेकिन हमने कभी मुड़ के देखा ही नहीं कि उस गाने के व्यूज़ आ रहे नहीं आ रहे. हमें मालूम था कि पिक्चर चले ना चले, वो गाना अपनी जगह बनाएगा. तो जवां तूफ़ान के अंदर एक फ्रेशनेस है जो हर्षित से आई है, क्योंकि हम नए लोगों के साथ इसलिए काम करते हैं क्योंकि नया इंसान अपना अलग एक साउंड और म्यूज़िक लेके आता है. तो हर्षित ने जब हमें जवां तूफ़ान का सोल जो जब गा के सुनाया, जो कैसे उसकी एक वाइब है उसके दिमाग में, तो हमें इतनी अच्छी लगी दोनों को. पहले हरमीत ने सुना, हरमीत ने फिर मेरे को बोला भाई बहुत तगड़ा गाना है, एक बार सुन लेना. तो मैंने कहा हरमीत बोल रहा है, हरमीत तारीफ़ कम करता है, तो मैंने कहा अगर बोल रहा है तो कुछ बात होगी. तो फिर मैं मिला, मैंने सुना बेसिक, तो हमने कहा इसको बहुत अच्छा बनाया जा सकता है, तो इसको करते हैं. फिर वो ऐसे एक बन गया गाना. और अब और इसमें एक और बहुत बड़ी बात थी कि
जो नया जज्बा होता है, नई टीम का जज्बा, तो हमारे जय तन्ना जी ने उन्होंने लिरिक्स लिखे हैं, ये तूफान की तरह हमारे पीछे पड़ गए कि भाई इस गाने को अच्छे से बनाना है और अच्छे से प्रोग्राम करना है, मिक्स करना है। तो आज मीत ब्रदर्स हैं, लेकिन हम लोग अपनी टीम की वजह से, अपने भाइयों की वजह से हैं, आप लोगों की वजह से हैं। आप लोग हमें रिकॉर्ड करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, तो बात बाहर तक जाती है। हम बस यही कहना चाहते हैं कि इट्स अ वेरी प्योर सॉन्ग। ऐसा नहीं है कि ये कहीं राग, कहीं किसी से कॉपी हुआ है कुछ, इट्स वेरी ओरिजिनल सॉन्ग। और आजकल आपको पता है ओरिजिनल कम बनता है, रिक्रिएशंस हो रही हैं। तो मीडिया को यही कहना चाहेंगे कि भाई इस अगर आप सब लोग बहुत खुद ही जवां हैं, इसको तूफान की तरह बस फैला दीजिए। और जय तन्ना जी ने क्या सोच के लिखा, इसको किसके ख्यालों में कौन सी थी वो कन्या जिसको तूफान की तरह तुमने लिख दिया? किसको दिमाग में था या फिर यू हैव रिटन दिस सॉन्ग लाइक? नहीं, अभी अब बात ऐसा है ना कि देखो, लिरिसिस्ट जो होता है ना, उनका एक चीज़ अच्छी ये बात होती है कि वो तो स्टोरी आपसे लेते हैं। आपका दिल टूटेगा तो मेरी दुकान चलेगी और आपको प्यार होगा तो भी मेरी दुकान चलेगी। खुद का दिल तोड़वाऊंगा तो मेरी दुकान थोड़ी देर के लिए पॉज पे आ जाएगी। तो मैं बस मैंने एक्चुअली ऐसी एक सिचुएशन देखी है एक टाइम पे मेरी लाइफ में। तब तो मैं बहुत ही मतलब एक रिटेल शॉप में काम करता था, तब की बात है। मैंने सच में एक लड़की को बहुत ही एक जवां तूफान में फुल भीगते हुए एक लड़के को मिलते हुए देखा है। जब सारी चीज़ें बंद हो रही थी, दुकानें बंद हो रही थी, और वो लड़की भाग भाग के बस सिर्फ उसको मिलने आई थी और वो लड़के ने लिटरली दरवाज़ा रोका था। ये सिचुएशन मेरे दिमाग में छप गई थी और ये बहुत पुरानी बात है वैसे। और बड़ी बात ये थी कि तूफ़ान तो हमने बहुत देखे हैं, लेकिन ये जो वर्ड है ना जवां तूफ़ान, ये नई चीज़ में क्या लाता है कि ये तूफ़ान उस चीज़ का है कि दिल में जो तूफ़ान उमड़ता है ना, आप जब भी किसी को दूर से देख के इतना पसंद कर जाओ कि योर हार्ट इज़ रेसिंग, और वही व्यक्ति जब पास आ जाए ना तो वही धड़कन रुक जाती है। और ये जो दोनों के बीच का जो तूफ़ान है ना, जब वो प्यार का तूफ़ान पीक पे हो ना, उसको जवां तूफ़ान बोलते हैं। Was it your suggestion for the title और किसी और का suggestion? इनके लिरिक्स थे, इनके लिरिक्स ही टाइटल का सजेशन। बट इनमें भी एक बात है कि मैं लिरिक्स लेके गया, लेकिन वो बोलते ना कि जौहरे की नज़र जो होनी चाहिए, मैं तो इस गाने को भीग जाना बोला था। क्योंकि इसका एक है कि लास्ट लाइन आती है कि जवां तूफ़ान में तेरा भीग जाना। तो मैं जब इनके पास भी लेके आया, मैंने दोनों को बोला, मेरा गाना है भीग जाना भीग जाना भीग जाना। ये इन दोनों का कहना था कि यार तू समझ नहीं रहा है बात को अभी भी। तेरे गाने में एक ऐसी चीज़ तूने लिखी है जो एक्चुअली में बहुत अलग टाइटल है, एक ब्रांड बनती है, और वो है जवां तूफ़ान। वरना हमको ही पता नहीं चला था कि अच्छा जवां तूफ़ान कुछ है। काफ़ी बार होता है लिखने वाले लिख देते, बट इट्स देयर टैलेंट टू एक्चुअली सी के सही बात क्या है, गलत बात क्या है। आप जैसे मुझे मनमीत ने बहुत एक अच्छी चीज़ सिखाई थी लिखते वक्त, कि जय हमेशा ये सोचो कि एक्शनेबल लिरिक्स क्या होते हैं। मतलब मैं तो मेटाफोरिक भी लिख सकता हूँ ना, मैं चांद तारों की बातें भी कर सकता हूँ, लेकिन सच बात यह है कि हम चांद तारे तोड़ के किसी के लिए नहीं ला सकते, ये सही बात है। दैट्स व्हेन मनमीत ने मुझे सिखाया कि क्या कुछ ऐसा लिख सकते हैं जो सच में एक्शनेबल हो, जो वीडियो में हमको दिखता है कि मेरे सीने से आके गले लग जा तू, या सीने से लग जा तू, तो ये एक्शनेबल पॉइंट है। कोई ऐसी बात नहीं मैं तेरे लिए तारे तोड़ के लाऊंगा। तारे तोड़ने के लिए तो आजकल कोई लड़की बोलती भी नहीं। आज की लड़कियां कहाँ बोलती हैं तारे तोड़ लाओ, वो सिर्फ कहती है हमारे लिए इंस्टा रील बना दो बस। उससे एक और सवाल मैं मीत ब्रदर्स से पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से एल्बम है एमबी म्यूजिक की मैं बात करूँ, इतने सारे गाने आपने दिए राइट फ्रॉम द डेकेड विच वेंट, इतने सारे गाने की रिक्रिएशन पार्ट भी कर सकते हो, क्योंकि ये फैंस की मांग है कि एमबी म्यूजिक पे रिक्रिएशन पार्ट अबाउट योर ओल्ड म्यूजिक। जिस तरह आपने इजाज़त की बात की, इजाज़त को भी रिक्रिएट करके कुछ ऐसा मिक्स मिश्रण नहीं हो सकता? देखिए, रिक्रिएशन की एक स्पेसिफिक डिमांड आती है तो ही हम लोग करते हैं, बिकॉज ऑडियंस भगवान होती है। ऑडियंस है तो हमारे किचन चल रहे हैं और हमारे गाने को अप्रिसिएशन मिल रहा है। ऑडियंस कहती है भाई कि आप ओरिजिनल सुनाओ, किसी और का सुनाया क्यों सुनाओ। सुनाया इसलिए होता है क्योंकि जो म्यूज़िक कंपनीज़ होती हैं, वो म्यूज़िक कंपनीज़ को सेल करने में बड़ा आसान होता है। अरे ये तो सुनाया फटाफट लोगों को पसंद आ जाता है। हम यहाँ बेचने नहीं आए हैं, हम यहाँ बिज़नेस करने नहीं आए हैं, हम लोग सब प्योर आर्टिस्ट हैं। विच इज़ वाई एमबी म्यूज़िक, जो कि हमारे पार्टनर है राजीव जी, उनके साथ हमने स्टार्ट करा है। इट्स बाय द आर्टिस्ट फॉर द आर्टिस्ट। मतलब एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्टों के लिए लेबल खोला है। हम लोग यहाँ बिजनेस तो अपने आप हो ही जाएगा, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट कि वी अंडरस्टैंड द इमोशंस, क्योंकि आज ये लोग और 10 लेबल के पास जाएंगे, लेकिन जो एक्सपीरियंस है हर स्टेप पे, लिरिक्स, कॉम्पोजिशन, प्रोग्रामिंग, प्रेस इंटरव्यूज़, हर चीज़ को कैसे इंपॉर्टेंस दी जाती है, एक आर्टिस्ट को कैसे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इसलिए हमने लेबल खोला। और इसलिए हम लोग रिक्रिएशन नहीं करना चाहते, हम ओरिजिनल्स करना चाहते हैं, बिकॉज ये लोग ओरिजिनल लेके आए हमारे पास। और दूसरी बात यह है कि अभी इतना ओरिजिनल म्यूज़िक इस वक्त दिमाग में है। अभी मुझे लगता है कि हरमीत और मेरी अभी जर्नी शुरू हुई है। अभी आपने हमारा मेरे ख्याल से सिर्फ
15-20% म्यूज़िक सुना है जो हमारे अंदर है। तो अभी अगले 10 साल में हमको बहुत कुछ नया लेके आना है जो आप लोग ज़िंदगी भर सुन सकें, एंजॉय कर सकें, आपकी फैमिलीज़, आपके बच्चे। हमारे गानों पे छोटे बच्चे बहुत डांस करते हैं, तो हम वो खुशियाँ और 10 साल देना चाहते हैं और वो ओरिजिनल म्यूज़िक से हो पाएगा। मैं आप लोग से कुछ दिन पहले मिला था आपके म्यूजिक लॉन्च में, टी सीरीज के ऑफिस में मूड बना लिया, आपको शायद याद होगा। जी जी, आपका सवाल भी याद है मुझे। काफ़ी अच्छे बैक टू बैक गाने आप लोग दे रहे हैं। रियली यू गाइस हैव मेड अ वेरी गुड बेंचमार्क इन इंडस्ट्री। और ये एमबी म्यूजिक एक अपना खुद का एक लेबल खड़ा करना और इतने अच्छे अच्छे गाने उसमें देना, जो कि आपने एक बहुत सही बात बोली सर स्टार्टिंग में कि ये दिल में बस जाने वाला गाना है। तो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है एक बड़े लेवल के साथ अपने गाने को लाना और एक अपना खुद का इंडिपेंडेंट गाने को लाना, कितना कुछ फर्क देखने को मिलता है उसमें एज एन आर्टिस्ट साइड? देखिए, इसमें कोई शक ही नहीं है कि बड़े लेवल पे ऑडियंस ज़्यादा होती है तो पुश मिलता है, लेकिन बड़ा लेवल कितना ही म्यूज़िक रिलीज़ कर पाएगा, तो बाकी म्यूज़िक का क्या होगा? इसलिए हमने एमबी म्यूज़िक खोला। आज भगवान की दया से हमारे 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और हम गाने इसलिए लेके आते हैं कि जैसे बहुत सारा टैलेंट इंडिया में अब आ रहा है और अब जय जैसे बहुत अच्छे गाने इनके साथ और भी 2-3 कर रहे हैं हम। इतने अच्छे गाने हैं और अगर वो बड़े लेवल के लिए वेट करेंगे तो इनको वेटिंग में इनकी जो काली दाढ़ी सफ़ेद हो जाएगी। तो और मेरा इसमें एक दूसरा पर्सपेक्टिव है। हम लोगों ने जब ये लेबल खोला तो हमने रिसर्च करा कि हम लोग बड़े लेबल्स के अगेंस्ट कैसे खड़े होंगे, और मुझे आपका सवाल बहुत ही इंटेलिजेंट लगा। बहुत रेयरली इतने टेक्निकल सवाल आते हैं। तो फैक्ट बड़ा सिंपल है, नंबर्स हैं। आप जाके देख लीजिए, बड़े लेबल्स पे बहुत सारे गाने आते हैं जो कि फ्लॉप होते हैं और कुछ नहीं होता उनका। और मैं आपको ऐसे कई छोटे लेबल्स बताऊंगा जो पंजाब के भी हैं, जैसे एक लहंगा करके गाना आया था गीत MP3 से, बिल्कुल किसी ने ना सुना उस लेवल का भी, छोटा, लेकिन वो 1 बिलियन ऑन यूट्यूब है। सो आज की डेट में ऊपर वाले की दया से डिजिटल और ऑनलाइन इतना स्ट्रांग है कि गाना अगर अच्छा हो, वीडियो अच्छा हो, लिरिक्स अच्छे हों, तो कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं। आज जस्टिन बीबर का जो अगर दुनिया का सबसे बड़ा सिंगर है, उसकी मम्मी ने CD रिलीज़ कर दी थी ऑनलाइन और आज वो जस्टिन बीबर है, बिगर देन एनीवन यू कैन नो। तो आप डिजिटल और प्रेस के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अब बड़ा छोटा कुछ नहीं रह गया। अच्छा कंटेंट इज़ एवरीथिंग। गुड वर्क, गुड हार्ड वर्क, इंटेंशन, ऑनेस्टी और मेहनत से चल सकता है, चाहे छोटा लेवल हो या बड़ा लेवल हो। ये आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है। So what according to you both is कि अगर कोई एक नया इमर्जिंग आर्टिस्ट आ रहा है, so he should choose for a label or he should go for an independent artist according to his? He should just go for great product। ऐसा प्रोडक्ट बनाओ कि वो अपने घर से भी रिलीज़ करे तो बच्चा जान जाए। देखिए, मैं आपको, वैसे तो हम लोग नाम नहीं लेते किसी का, लेकिन क्योंकि एक टैलेंट है और हम अच्छी बात बोल रहे हैं तो नाम ले सकते हैं। जैसे ढिंचाक पूजा, उन्होंने जो भी करा वो अपने घर से बैठ के करा और वो सब फेमस हो गई। उन्होंने कैसा भी कंटेंट निकाला हो। तो आज की डेट में किसी भी तरीके का टैलेंट हो, हमें किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। आर्टिस्ट, हिंदुस्तान के आर्टिस्टों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपके पास अच्छा प्रोडक्ट हो या आपके पास अच्छा आइडिया हो इंटरव्यू लेने का, तो आपको कोई भी चांस देगा। शाहरुख जी भी बोलेंगे कि आइए, तो हर किसी को मौका मिलेगा। दूसरी बात ये है कि जैसे आज के जो लेटेस्ट जो हार्ट थ्रॉब्स हैं, जैसे AP ढिल्लन है, किंग है, ये दोनों किसी बड़े लेवल से नहीं आए। करेक्ट। ये लोग बस आ गए क्योंकि इनके अंदर म्यूज़िक था। तो जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, इंटरव्यूज जो देख रहे हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं, आप अपना म्यूज़िक बस अच्छा बनाओ और उसको आप यूट्यूब पे या कहीं पे भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे आप रिलीज़ करो, और जो चीज़ अच्छी होगी उसको कोई रोक नहीं सकता। और सर, जैसा कि आपने कहा कि अभी ये जो हमारी जर्नी है, मीत ब्रोस की जर्नी जो अभी शुरू हुई है, तो कहीं वो इसी वजह से नहीं कि MB म्यूजिक पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम फॉर एनी अदर लेवल? नहीं, इस बार इनफैक्ट पिछले 3-4 साल में हम थोड़ा लेवल में, और हमारी MB म्यूज़िक एकेडमी इस वक्त इंडिया के टॉप 10 स्कूल्स को पढ़ा रही है, जिसको हम काफ़ी इंडिया में हर जगह लेके जा रहे हैं। और इन चीज़ों के बीच में हमारा लाइव 101 प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आर्टिस्ट 300 जॉब्स आर्टिस्ट को हर महीने मिलती हैं हमारे प्लेटफॉर्म से। जो परफॉर्म आप कैफेस क्लब में देखते हैं, जो बॉम्बे, दिल्ली में जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं क्लब, वो हमारी लाइव 101 कंपनी के थ्रू आते हैं। तो इसकी वजह से म्यूज़िक कम बनाया है, लेकिन अब वो सारी चीज़ें हो गई हैं। तो अब इस साल हमारी 5-7 फिल्म आ रही हैं। ड्रीम गर्ल 2 है, सत्य प्रेम की कथा है, कार्तिक आर्यन, और बहुत सारी फिल्में। अभी हमारा लेटेस्ट गाना आपने सुना होगा, क्योंकि आज हम यहाँ आए हैं तो आपको गा के सुना देते हैं। विकी कौशल ने बहुत क्यूटली उस पर परफॉर्म किया है, गोविंदा नाम मेरा। हाँ, थोड़ी एंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए आप लोगों के लिए, अदर देन टिपिकल मीत ब्रदर्स पुराने स्टाइल का गाना है हमारा। मैं ता तेरी लैनी है पप्पी।